in group 15, the elements are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. ठीक है, last element over there, moscovium over there. ठीक है, उसके बाद occurrence में apatite family दिया हुआ है 3Ca3PO4 twice dot CaX2. X क्या होता है यहाँ पे? फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अगेन आई रिपीट, X क्या होता है? फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप. उसके बाद रेडियस का ऑर्डर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. ठीक है, रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, डेंसिटी बढ़ता है, डेंसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. +5 डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस, +3 increases. +5 decreases, +3 increases. -3 also decreases. Metallic character बढ़ता है, non-metallic character कम होता है. उसके बाद if you go down, metallic conductivity will also go on increasing. There is one disproportionation reaction over here. HNO2 gives you HNO3 plus N2O over there. HNO2 gives you HNO3 plus I'm not sure over there. HNO2 gives you HNO3 plus NO over there. Yes, it gives you NO over there. These are the physical properties over there. Now, if I talk about hydrides, ठीक है, hydrides में अगर हम बात करें, सबसे पहले hydrides में boiling point. Remember, boiling point is bismuth over there. ठीक है, melting point is N-bismuth. ठीक है, again repeat, boiling point bismuth, melting point N-bismuth. As we go down the group, bond length बढ़ता है, bond dissociation energy कम होता है. Tendency to accept proton is highest for ammonia. Strongest tendency for hydrogen bonding is also for ammonia. Strong smell, poisonous nature increases down the group. Strong smell and poisonous nature increases down the group over there. ठीक है, Tanvi, can you repeat this much? Yes, sir. So, we started by talking about the apatite family. These are chemicals which are found in minerals, that is Ca9PO4 6, CaX2, where X can be fluorine, it can be chlorine, and it can be hydroxyl group. Then we go over to group 15 elements, that is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, and moscovium. Moscovium is radioactive. Its half-life is it has a short half-life. Then ionic radii increases down the group, ionization enthalpy decreases down the group. Then non-metallic character decreases, metallic character increases. Antimony is a metalloid, bismuth is a metal. Then melting and melting boiling point you can add antimony, nitrogen, phosphorus, antimony, arsenic, bismuth. Can I say arsenic is highest for melting point? Yeah. Then antimony, then bismuth, then phosphorus, and least is nitrogen. But for boiling point, it increases, except there's a switch between antimony and bismuth. Then we have allotropy. Allotropy mein they said ki except nitrogen, all other elements have their own allotropes. Phosphorus exists in white, black, and red phosphorus. Then arsenic exists in gray metallic arsenic, yellow arsenic, and black arsenic. Antimony exists in allotropic forms like metallic, yellow antimony, alpha antimony, and explosive antimony. Then conductivity increases down the group as metallic nature increases down the group. Oxidation states shown by the group 15 elements is -3 to +5. However, nitrogen shows maximum covalence of 4 because of absence of d orbital. So it cannot form the compounds like PCl5, which other elements can form. Then, NCl5. It cannot form NCl5. Yeah. So then we have a disproportionation reaction that says HNO2 on disproportionating, it gives HNO3 and NO. Then we have chemical properties of hydrides. The boiling point of hydrides is while the melting point is N-bisap. Bond angle decreases down the group. The efficacy of the hydrogen bonding among the group 15 hydrides is maximum for pH 3 and decreases down the group. Okay, makes sense. Yes.
Now I go to the next thing, which is nothing but understanding the oxides over there. Now there are altogether 6 oxides that we have to do. One is N2O. N2 is also called as laughing gas or nitrous oxide. The next is nitric oxide, NO. Okay. Next is N2O3, dinitrogen trioxide. One more name to it, nitrogen sesquioxide. Nitrogen sesquioxide. Okay. Next NO2, nitrogen dioxide. N2O4, dimer of it, dinitrogen tetraoxide, and N2O5, dinitrogen pentoxide. Okay. Then we should know the oxidation numbers over here. N2O is +1, NO is +2, N2O3 is +3, NO2, N2O4 +4, and N2O5 +5. ठीक है. Next we should also know the preparation methods of this. Okay, इसके पहले colors कौन-कौन से? N2O3 is blue over there. NO2 reddish brown. NO2 reddish brown. उसके बाद preparation methods. Preparation method में सबसे पहले NH4NO3 को अगर हम heat करें तो हमें मिलेगा laughing gas. Again I repeat, NH4NO3 को heat करें तो हमें मिलेगा laughing gas. अगर हम ले zinc plus dilute HNO3 तो भी हमें मिलेगा laughing gas. Next है NO. NO को अगर हमें बनाना है तो FeSO4, NaNO2 and H2SO4. Or you can take zinc plus copper plus dilute HNO3. ठीक है, copper plus dilute HNO3 लोगे तो ये लोगे. और एक और चीज, कभी भी conc HNO3 लोगे तो NO2 बनेगा. कोई भी मेटलॉइड और वो सब में हमें हमेशा conc के साथ NO2 मिलेगा. N2O3 बनाने के लिए तरीका याद है आपको, +2 और +4 वाला लेते हैं तो NO plus N2O4. NO plus N2O4 हमें N2O3 देगा. NO plus N2O4 हमें N2O3 देगा. फिर अगर हमें N2O4 बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल्स लो NO2 के और उसको कूल कर दो. ठीक है. NO2 बनाने के बहुत सारे तरीके. NO2 बनाने का सबसे पहला तरीका S ब्लॉक में पढ़ते हो. LiNO3 वाला जो रिएक्शन अगर आप याद करो, ठीक है, उसमें LiNO3 को अगर हम हीट करेंगे तो क्या क्या बनता है वहां पे? Li2O, NO2, NO2. ग्रुप 2 नाइट्रेट्स लो तो भी यही बनेगा, NO2 मिलेगा. एंड हेवी मेटल नाइट्रेट्स लो तो भी यही बनेगा, NO2. ठीक है. या फिर आप नॉन मेटल मेटलॉइड लो तो भी क्या बनेगा? NO2. उसको थर्मल डिकम्पोजिशन. One more disproportionation reaction, Tanvi, that you said HNO2 वाला reaction. I can also add over that H3PO3 वाला reaction. Group 15 में एक और है. H3PO3 on disproportionation gives you H3PO4 plus phosphine. एक और disproportionation जो दिमाग में आ रहा है वो है phosphor, white phosphorus plus NaOH. Phosphine plus NaH2PO2. एक और जो आ रहा है वो DNF का है. MnO4 2- का. MnO4 2- gives you MnO4 1- plus MnO2. ठीक है. और इसके बैलेंसिंग के क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं. इसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए. ओके, कौन कौन से कलर्स है मैंने बताया. N2O3 जो है वो ब्लू है, NO2 रेडिश ब्राउन है. फिर कौन से पैरामैग्नेटिक है, सिंगल नाइट्रोजन वाले, कौन कौन से? NO एंड NO2. ठीक है. अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें, N2O लीनियर है वहां पे, N2O लीनियर है, NO भी वहां पे लीनियर ही है. फिर हम अगर हम देखें N2O3 प्लेनर है. वो दोनों एंगल्स में पता रहना चाहिए कौन सा एंगल ज्यादा है. जो राइट हैंड साइड में NO2 जो रहता है वहां पे वो एंगल ज्यादा रहता है. ठीक है. फिर वैसे ही NO2 एंगुलर स्ट्रक्चर होगा वो. यू शुड आल्सो नो दैट NO2 हैज अ ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं NO2 में. ठीक है. 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं उसको. N2O4, N2O5 ये सब प्लेनर है. और N2O5 में पता रहना चाहिए एक ऑक्सीजन ब्रिजिंग है. N2O5 में एक ऑक्सीजन ब्रिजिंग है, ये भी पता रहना चाहिए हमें. एक और चीज जो यहाँ पे पूछते हैं, N2O5 में कोवैलेंस क्या है नाइट्रोजन का. कैन आई से द नाइट्रोजन इन N2O5. ठीक है. कोवैलेंस क्या हो जाएगा वहां पे? हाउ मेनी इज इट अटैच्ड टू? +5 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है. ठीक. कैन आई से द कोवैलेंस विल बी 4 ओवर देयर. ठीक है. क्योंकि उसके अराउंड ऑल टुगेदर 4 बॉन्ड्स है. एटम्स 3 है लेकिन बॉन्ड्स 4 है. मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना. ऑक्सीडेशन नंबर +5 है. Again I repeat, there are 3 atoms around it, there are 4 bonds, hence the covalence is 4. The oxidation number is +5. Okay, this is all about oxides of nitrogen. Now I go to PCl3, PCl5. ठीक है. अगर हम phosphorus ले with chlorine, ठीक है, तो हमें मिलता है PCl3. ठीक है. अगर हम excess ले ले तो हमें क्या मिलता है? PCl5. phosphorus ले with SOCl2. phosphorus ले with SOCl2 क्या मिलेगा मुझे? PCl3. लेकिन phosphorus ले with SO2Cl2 तो क्या मिलेगा हमें? PCl5. तो बेसिकली अगर आपको फ्लो चार्ट याद है, बीच में phosphorus था,
ऊपर क्लोरीन था, नीचे SOCl2 था, तो PCl3 बना था। यहाँ से वापस फॉस्फोरस विद क्लोरीन एक्सेस था, अगर आपको याद हो। और अगर आपको याद हो, ये फॉस्फोरस कौन सा एलोट्रोप था? व्हाइट था। इसको याद हो तो व्हाइट फॉस्फोरस लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें ये पता रहना चाहिए कि इसके रिएक्शंस क्या है। अगर हम PCl3 ले विद वाटर, क्या मिलेगा? PCl3 विद वाटर विल गिव यू H3PO3। ठीक है, लेकिन PCl5 विद वाटर ले, इनसफिशिएंट और अगर हमने सफिशिएंट लिया तो दोनों में अलग अलग बनता है। इनसफिशिएंट रहे तो क्या बनेगा? पहले इनसफिशिएंट लिया तो POCl3, और सफिशिएंट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो H3PO4। यही हमने देखा था हैवी वाटर सुपर हैवी वाटर के साथ रिएक्शन, याद है आपको? फिर हमने देखा CH3COH प्लस PCl3। आपको याद होना चाहिए OH हट के क्लोरीन आ जाता है, दोनों में, PCl3 में भी PCl5 में भी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग बाई प्रोडक्ट चेंज होगा। PCl3 में करस्पॉन्डिंग बाई प्रोडक्ट है H3PO3, लेकिन PCl5 में करस्पॉन्डिंग बाई प्रोडक्ट है POCl3। इज इट क्लियर? उसके बाद PCl5 को अगर आप हीट करो तो PCl3 प्लस क्लोरीन बनता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, PCl5 इन द सॉलिड स्टेट कैसे एग्जिस्ट करता है? PCl5 इन द सॉलिड स्टेट कैसे एग्जिस्ट करता है? कैसे? PCl6 माइनस PCl4 प्लस। PCl6 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा और शेप क्या हो जाएगा? कैन आई से sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल, और PCl4 प्लस कैन आई से टेट्राहेड्रल एंड sp3। क्लियर है? PCl5 में ये भी पता रहना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर जो है, इसमें एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बारे में पता रहना चाहिए। which bonds over there are longer? Can I say the axial bonds are longer? ठीक है, axial bonds are longer over there. Now we also should know that PCl3 fumes in moisture over there. PCl3 fumes in moisture. ठीक है, why does it fume in moisture? Because it reacts with water to produce white fumes of HCl. It reacts with moisture to produce white fumes of HCl. ठीक है, Arya, can you repeat all this? Yes, sir. Okay, so we start with white P4. If we have No, I want you Cl2. to start from nitrogen oxides. Okay. So there are 6 nitrogen oxides. We start with N2O. N2O. I'll start with all the oxidation states. So N2O will be 1. NO will be +2. N2O3 will be +3. NO2 and N2O4 will be +4, and N2O5 will be +5. Then preparation of N2O will be ammonium nitrate, thermal decomposition, and zinc plus dilute HNO3. Then NO will be copper plus dilute HNO3, and FeSO4 plus H2SO4 plus NaNO2. Then comes NO2, N2O3. N2O3 we do with +2 and +4, so NO plus N2O4. And then will be NO2. NO2 will be for S block it will be group 1. From group 1 will be lithium nitrate, and from group 2 all elements. All this will give thermal decomposition. From thermal decomposition, then there will be heavy metals plus concentrated HNO3, and even nitrates, heavy metal nitrates का thermal decomposition. Then N2O4 will be dimerization of NO2, and N2O5 will be HNO3 plus P4O10. Then the structures will be linear for N2O will be linear, NO will be linear, then N2O3 will be planar, Yes. NO2 will be angular with one odd electron, then N2O4 will be planar again, N2O5 will also be planar with an oxygen bond. So the nitrogen is connected to 3 atoms with 4 bonds, that's why the covalence is 4, but the oxidation number is +5. बराबर. And the paramagnetic ones are with single nitrogen, and Yes. the neutral ones have a single oxygen. Yeah, neutral ones have a single oxygen. And the colors are Colored for ones. NO2, which is reddish brown gas, and for N2O3, which will be blue solid. बराबर. Yeah. So now I go to PCl3, PCl5. Okay, Yeah. so you start with white phosphorus. You add chlorine, you'll get
PCl3, but if you add excess chlorine, you will get PCl5. And if you add SOCl2, you will get PCl3. And if you add SO2Cl2, then you will get PCl5. Then if we start with Yeah. reactions of PCl3, then with H2O, it will give H3PO4 plus HCl. But PCl5 with H2O, inadequate will be POCl3, and adequate will be H3PO4. Then CH3COH will give CH3COCl with both, but the other product will be different. So for PCl3 it will be H3PO4, but for PCl5 will be POCl3. Then if we add ethanol, it will be Ethyl chloride. ethyl chloride. Okay. Then PCl5 will also give PCl3 plus Cl2. Then the structures. So PCl3 has one has an electron pair, lone electron pair, and it has Odd electron. No, PCl5 actually an equidorial. no, not PCl3. PCl3 will have one lone pair. PCl5 Lone is pair. PCl5 is sp3d with 2 axial bonds and 3 equatorial bonds. The axial bonds are longer than the equatorial bonds. Then in solid state, PCl5 exists as PCl6 minus and PCl4 plus. PCl6 minus will be octahedral and PCl4 plus will be tetrahedral. Did I miss anything? Okay. No, thank you. Then we can go to the next thing is nothing but understanding the HNO3 reactions. First preparations over there. Preparations, if you see over there, the lab method over there. Lab method may we start with NaNO3 or you can start with KNO3. NaNO3 or you can start with KNO3 along with H2SO4. Okay, NaNO3 or KNO3 with H2SO4. Then you have Ostwald's process. In Ostwald's process, you start with ammonia, add oxygen over there in the presence of the catalyst PTRH. तो आपको NO मिलेगा. NO में अगर आप O2 ऐड करोगे तो NO2 बनता है. NO2 में H2 ऐड करोगे तो HNO3 plus NO मिलता है. HNO3 जो रहता है ये 68% कम रहता है. इसको हम 98% बनाते हैं by adding sulfuric acid over there. Strong concentrated sulfuric acid over there. HNO3 के अलग अलग नाम King's water, Royal water over there, Aqua Fortis, strong water. Again I repeat, strong water, King's water, Royal water, Aqua Fortis. Aqua Regia क्या होता है? 3 parts of HCl, 1 part of HNO3. Again I repeat, Aqua Regia क्या होता है? 3 parts of HCl, 1 part of HNO3. इसके बाद reactions of HNO3 को अगर हम मेटल्स के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलता है? बेसिकली मेटल नाइट्रेट. जैसे कॉपर ले लिया तो कॉपर नाइट्रेट, जिंक ले लिया तो जिंक नाइट्रेट अलॉन्ग विद NO2. इसमें अच्छा क्वेश्चन ये होता है कॉपर प्लस डाइल्यूट, जिंक प्लस डाइल्यूट क्या देता है? गैसेस चेंज हो जाएंगे. कॉपर में हो जाता है NO और जिंक में हो जाता है N2O. ठीक है. आयोडीन में HiO3 बनेगा, सल्फर में H2SO4 बनेगा, फास्फोरस में H3PO4 बनेगा, कार्बन में H2CO3 बनेगा, आयोडीन में HiO3 बनता है. ठीक है. फिर और क्या है? नाइट्रोजन नो रिएक्शन, फास्फोरस H3PO4, आर्सेनिक H3SO4, एंटीमनी Sb4O10, बिस्मुथ क्या बनेगा? BiNO3 थ्राइस. ठीक है. फिर एक्वा रीजिया के रिएक्शंस अगर हम देखें, एक्वा रीजिया के रिएक्शंस में पहले बनता है नेसेंट क्लोरीन. ये नेसेंट क्लोरीन गोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? AuCl3 और HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? HAuCl4 और क्लोरिक एसिड. प्लैटिनम पहले क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? PtCl4. ये PtCl4 और HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? H2PtCl6. इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लैटिनिक एसिड. ठीक है. उसके बाद हमने ब्राउन रिंग टेस्ट देखा. ब्राउन रिंग टेस्ट में इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ NO3 माइनस. ठीक है. इसमें पता रहना चाहिए ब्राउन रिंग टेस्ट का कलर जो रहता है वो चार्ज ट्रांसफर से आता है जो हमने DNF में किया था. इसमें उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स पता रहना चाहिए. ब्राउन रिंग टेस्ट का जो कॉम्प्लेक्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वहां पे NO को +1 लेते हैं, Fe मिलता है मुझे +1. ठीक है. फिर हमने यहाँ पे ज़ैंथोप्रोटीन्स के बारे में बात की थी. HNO3 रिएक्ट करता है स्किन के साथ और वहाँ पे येलो कलर देता है. HNO3 का अनहाइड्रेट पता रहना चाहिए. HNO3 का अनहाइड्रेट हो जाएगा HNO3 + HNO3 - H2 N2O5 हो जाएगा. ठीक है. उसका अनहाइड्रेट फिर उसको यूज करते हैं अलग अलग जगह पे TNT बनाने के लिए, पिक्रिक एसिड बनाने के लिए. ये सब उसके अलग अलग रिएक्शंस है. वहाँ पे एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं. और क्या है? HNO3 प्लस HNO3 का स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए. उसके दो अलग अलग बॉन्ड एंगल्स है. जो NO2 वाला बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर बॉन्ड एंगल ओवर देयर.
NO2 का जो उसका बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है as compared to the other over there. Dhruv, can you go ahead with HNO3? Yes, sir. So we start with NaNO3 or KNO3 and we react it with H2SO4. This is the lab method. You get HNO3. Commercial commercial process, optimal process is NH3 plus oxygen. Platinum rhodium catalyst, you get NO, you add oxygen, you get NO2. NO2 may add water, you get HNO3 which is 15% pure. You add H2SO4 to that, concentrated H2SO4 to increase the concentration to 98%. Then the different names of HNO3 are aquafortis, pink water, royal water, something like that. And the reactions of HNO3. Concentrated HNO3, it gives NO2 with everything except a few. With metals, it will give nitrate. With different like arsenic के साथ it will give H3SO4. Antimony के साथ Sb4O10. Bismuth के साथ BiNO3 thrice. Phosphorus H3PO4. What else? बराबर. Iodine के साथ it will give HiO3. Sulfur के साथ H2SO4. It will not give a reaction with nitrogen. Dilute HNO3 reacts with copper and zinc. Copper के साथ it will give NO. Zinc के साथ it will give N2O. Then aqua regia is 3 parts of HCl and 1 part of HNO3. It gives nascent chlorine. Nascent chlorine reacts with gold to form AuCl3 and then further to form HAuCl4 orochloric acid. With platinum it forms PTCl something and then chloroplatinic acid. PTCl4. PTCl4 and then H2 and then PTCl. It forms with 2 HCl, it forms H2PTCl6. H2PTCl6, yes. Then it reacts with toluene to form TNT. I guess, yes. Nitrating mixture हुआ तो. Nitrating mixture, yes. Nitrating mixture. It forms picric acid, chloropicrin, and one more something. Then brown ring test. Brown ring test में one more something is तेरा ये oxalic acid वाला reaction. Is it? Yeah. Oxalic acid वाला reaction. होगा याद नहीं है. Brown ring test, the color is because of charge transfer. Yeah, cane sugar वाला reaction, yes. Brown ring test is because of charge transfer, yes. और उसका oxidation number? Fe1 plus NO1 plus. Yes. Yes. ठीक है. चलिए. Next we can go to oxo acids over there. ठीक है, oxo acids को सीधा आप ही बता दो. अनन्या, oxo acids बताइए. Structures along with preparations. Can't hear you. ठीक है, चलो मैं ही बताता हूँ. H3PO2. Can I say will be the first one over there? Hypophosphorus acid. Then H3PO3. Okay, hypophosphorus is also called as phosphonic acid. H3PO3, phosphorus acid or phosphonic acid. बराबर. उसके बाद H3PO4 orthophosphoric acid. Structures क्या है इसका? P double bond OH H. H3PO2 का structure. H3PO3 का structure P double bond OH H. H3PO4 का structure P double bond OH. Oxidation numbers अगर मैं देखूं, H3PO2 में आएगा +3 आएगा, सॉरी +2 आएगा, फिर +3 आएगा और फिर +5 आएगा. ठीक है. H3PO2 का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, सॉरी इधर +1 आएगा, तो सॉरी यहाँ पे +1 आएगा. H3PO3 में +3 आएगा और H3PO4 में +5 आएगा. ठीक है. एक और चीज यहाँ पे कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं. इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो P डबल बॉन्ड H OH. इसका स्ट्रक्चर मैं देखूं, इसका P डबल बॉन्ड OH. इसका स्ट्रक्चर मैं देखूं P डबल बॉन्ड OH. ठीक है. अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन, बेसिसिटी क्या होगा इसका? इसका बेसिसिटी हो जाएगा 1, इसका बेसिसिटी 2, इसका बेसिसिटी 3. ठीक है. जितने OH उतना उसका बेसिसिटी, उतने डिसोसिएशन स्टेप्स भी. जितने ज्यादा H उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट. इसके लिए ये जो रिएक्शन है ये सबसे वीकेस्ट रहेगा, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा. ये HgCl2 को Hg
में कन्वर्ट करेगा, AgCl को Ag करेगा। अगेन रिपीट, ये HgCl2 को Hg में कन्वर्ट करेगा, AgCl को Ag में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके दो मॉलिक्यूल्स लो, वाटर मॉलिक्यूल निकालो तो क्या बन जाएगा? पायरोफॉस्फोरस। इसके दो मॉलिक्यूल्स लो, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालो तो क्या बन जाएगा? पायरोफॉस्फोरिक। ठीक है, क्लियर है ये? पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरिक। अब पायरोफॉस्फोरिक का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, टेट्राबेसिक हो जाएगा। इसमें से अगर आप एक O हटा दो तो क्या बन जाएगा? हाइपोफॉस्फोरिक, H4P2O6। याद है, पायरो में हमेशा ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन होने चाहिए, 5 and 7, भले वो सल्फर हो या फास्फोरस हो, हमेशा ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो रहे। ये क्या बनाया सर आपने? ये मैंने बना दिया है पायरोफॉस्फोरिक। ये जो मैं बता रहा हूँ ये है आपका हाइपोफॉस्फोरिक। तो ये क्या था सर? ये हाइपोफॉस्फोरस था, इसको हम फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। फिर हमने एक और देखा था साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ग्लेशियल मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं उसे। उसका स्ट्रक्चर अगर याद हो तो PO, P के ऊपर डबल बॉन्ड हो, नीचे OH, PO डबल बॉन्ड हो OH, P डबल बॉन्ड हो OHO, P डबल बॉन्ड हो OHO, P डबल बॉन्ड हो OHO। फिर साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, POP 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 डबल बॉन्ड हो OH, डबल बॉन्ड हो OH, डबल बॉन्ड हो OH। ठीक है, अगर प्रिपरेशन मेथड्स पे जाओ तो अगर मैं हाइपोफॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरिक की बात करूं, उसका प्रिपरेशन मेथड है व्हाइट फास्फोरस प्लस अल्कली, रेड फास्फोरस प्लस अल्कली। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट जाऊं पायरो बनाना है, तो पायरो बनाने जैसे हमने H3PO3 बनाना है तो इसमें ले लो PCl3 प्लस वाटर। ठीक है, PCl3 प्लस वाटर ले लो, P2O3 प्लस वाटर ले लो या उसका डायमो ले लो। इसको बनाना है तो PCl5 प्लस वाटर ले लो या P2O5 विद वाटर ले लो। क्लियर है ये? वैसे अगर आपको पायरो बनाना है तो पायरो जैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वैसे बनाएंगे। P4 प्लस कॉन्क HNO3 ले लो तो भी H3PO4 बनेगा। ठीक है, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड या ग्लेशियल बनाना है तो आप कैसे लेते हो? H3PO3 प्लस ब्रोमीन इन अ सील ट्यूब, H3PO3 प्लस ब्रोमीन इन अ सील ट्यूब। ये आपका बेसिकली ये बन गया सबके सब आपके ऑक्सो एसिड्स अलोंग विद द प्रिपरेशन एंड ऑल। ठीक है, लीला द कैन यू रिपीट द एंटायर थिंग? First, we have H3PO2, which is hypophosphorus acid. The oxidation state is +1 and the structure is P double bond OHHOH, and the preparation method is white P4 plus alkali. Then we have H3PO3, the structure is P double bond OHOH, and preparation method is PCl3 plus water or P2O3 plus water, and the oxidation state is +3. +3. Then H3PO4 is P double bond O and 3 OH. Preparation method is H3PO4, P4 plus conc HNO3, or you can take PCl5 with water, or you can take P4O10 with water. okay. And if you want to prepare pyrophosphorus acid, you can take PCl3 plus H3PO3. The weakest reducing agent, while hypophosphorus is the strongest reducing agent. Basicity, hypophosphorus is 1, phosphorus is 2, and phosphoric is 3. Then we move on to pyrophosphorus acid. Preparation will be you remove one, you take 2 and you remove H2O from there, and pyrophosphorus odd number of electrons formula. Can I calculate it? Yeah. Pyrophosphorus, I'll tell you, H4P2O5. Okay. Then pyrophosphoric, same method as a H4P2O7. We remove one H2 and it forms P4. Then we have cyclometaphosphoric acid or glacial phosphoric acid, which we take Br2 and H3PO3 in a sealed tube. Then we have hypophosphoric acid, which is P double bond O, OHOH, OHOH, and basicity is 4, and preparation is red P4 plus alkali. Okay, tick. Then I go to the next thing, which is nothing but understanding ammonia हो गया, ammonia बाकी है. Ammonia के अगर बारे में बात करें, ammonia का preparation method Haber's process. You can take urea plus water. ठीक है, अमोनिया बनाने के लिए आप हेबर्स प्रोसेस ले सकते हो.
यूरिया प्लस वाटर ले सकते हो, और ऑलवेज यू गेट मॉइस्ट NH3. मॉइस्ट NH3 को ड्राई NH3 कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम बेसिकली, सर मॉइस्ट NH3 कौन से रिएक्शन में बनता है, NH4Cl CaOH twice. NH4Cl plus CaOH twice, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, NH4Cl plus CaOH twice में NH4OH बनेगा, वो जो मॉइस्ट होता है बेसिकली, और दूसरा बन जाएगा आपका CaCl2. दूसरा है NH4 twice SO4 plus NaOH, NH4 twice SO4 plus NaOH. यहाँ पे भी आपका मॉइस्ट बनेगा. मॉइस्ट टू ड्राई कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करते हैं, क्या हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा. क्या हम CaCl2 यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाएगा. P4O10 यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो एसिडिक एनहाइड्रेट है. CaO यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्विकलाइम, यस, बिकॉज बेस है, इसके लिए हम एक बेस यूज करते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ठीक है. उसके बाद हमने ये भी देखा कि लिथियम नाइट्राइड ले लो, मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लो विद वाटर, ये वो भी अमोनिया ही देगा. कैल्शियम साइनामाइड ले लो विद वाटर, ये भी आपको अमोनिया ही देगा. सर कैल्शियम साइनामाइड क्या होता है, CaCN2. कैल्शियम साइनामाइड क्या होता है, CaCN2. लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड विद वाटर, सब के सब आपको क्या देगा, अमोनिया. उसके बाद हमने रिएक्शन देखे थे अमोनिया के. अमोनिया विद O2, खाली O2 लिया तो क्या बनता है, N2. लेकिन O2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या देगा आपको, NO. अमोनिया विद क्लोरीन, अब दो केसेस है इसमें, एक में क्लोरीन एक्सेस में होता है, एक में अमोनिया एक्सेस में होता है. अगर क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो क्या बनता है, NCl3. ठीक है, HCl, दो क्लोरीन के कंपाउंड्स. और अगर नाइट्रोजन एक्सेस में हुआ तो दो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स. अमोनिया एक्सेस में हुआ तो दो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स. ठीक है. वैसे ही अगर हमने NH3 थायोडीन ले लिया तो NH3NI3 बन जाता है, जिसको आप और हीट करोगे तो N2 गैस हीट होता है. वैसे अगर आप CuO के साथ रिलीज करो तो भी नाइट्रोजन बनता है. फिर अगर आप नेस्लर्स रिएजेंट लेते हो, अमोनिया प्लस नेस्लर्स रिएजेंट, सर नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, K2HgI4 प्लस KOH. ठीक है. इसको अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे तो NH2HgO HgI, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है. फिर सर और क्या है, अमोनिया विद B2H6. B2H6 में पहले वो एक कटायन एनायन बनता है, कटायन एनायन बनता है. उसके बाद उसको और अगर आप आगे लेके जाते हो तो क्या बनता है, बोराजीन, बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं आइसोस्ट्रक्चरल आइसोस्टेरिक विद बेंजीन. याद है आपको ये. फिर अमोनिया विद NaOCl क्या देगा आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लू और जिलेटिन आपको देगा हाइड्रोजीन, NH2NH2. ठीक है. आपको पता रहना चाहिए इसलिए इसका बेसिक हाइड्रेट है. एक और होता है अजाइड आयन. अजाइड आयन क्या होता है, N3-, उसका एसिड क्या होता है, N3H, हाइड्रोजोइक एसिड. सही है, जो लिख रहे हो आप लोग बहुत सही है. NaOCl 42 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही. नेक्स्ट कैन आई आल्सो से जिंक सल्फेट. ठीक है. जिंक सल्फेट विद NH4OH will give you zinc hydroxide, which is white PPT over there, and FeCl3 with NH4OH will give you brown precipitate over there, Fe2O3 not XH2. ठीक है. कॉपर में Cu2 plus with ammonia will give you Cu whole NH3 4 times 2 plus, color change यहाँ पे blue to deep blue. Again Cu2 plus ammonia will give you Cu NH3 4 the whole 2 plus, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है. कलर चेंज क्या है, ब्लू टू डीप ब्लू. वैसे अगर आप सिल्वर ले दे तो Ag plus plus Cl minus, Ag plus का कलर व्हाइट ओवर देयर, AgCl बनेगा व्हाइट ओवर देयर. AgCl plus अमोनिया ले लिया तो कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 the whole 2 Cl, वापस क्या बन जाएगा, कलरलेस. ठीक है. और कोई रिएक्शन जो यहाँ पे उसके बाद NH3 plus HCl ले लो तो NH4Cl बन जाता है. ठीक है. ये सब के सब रिएक्शंस हो गए अमोनिया के. निष्ठा रिपीट करना एक बार ये. NH3 के लिए हम लोग अमोनिया से ऐड करेंगे तो बनता है, और NH4Cl plus CaH2 लेते हैं, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो बनता है. फिर उसको ड्राई करने के लिए CaO यूज करते हैं, H2SO4 यूज नहीं करते क्योंकि वो एसिडिक है तो वो रिएक्ट करेगा. फिर P4O10 यूज नहीं करते क्योंकि वो एसिडिक एनहाइड्राइड है, और CaCl2 के साथ CaCl2.8 NH2 का कॉम्प्लेक्स देते हैं इसलिए नहीं करते. फिर CaCN2 और सारे नाइट्राइड के साथ जब भी अमोनिया बनता है, और उसके रिएक्शंस NH3 with O2 gives N2, NH3 with O2 in presence of catalyst gives NO, NH3 ग्लू और जेलेटिन के प्रेजेंस में NaOCl के साथ हाइड्रोजीन देता है. NH3 फिर Ag के साथ AgCl देता है जो कलरलेस होता है. वो फर्दर रिएक्ट करेंगे तो AgNH3 ट्वाइस देता है जो AgCl वाइट कॉम्प्लेक्स एंड कलरलेस. फिर CuO के साथ भी N2 देता है. फिर NH3
जब एक्सेस में होता है तो NH4Cl प्लस N2 देता है और NH3 प्लस एक्सेस Cl2 NCl3 प्लस HCl देता है, NCl3 एक्सप्लोसिव I येलो के कलर साथ वगैरह येलो एक्सप्लोसिव एंड फिर I2 के साथ NH3 Ni3 देता है, फिर और क्या था NaOCl in the presence of glue or gelatin. NH2 फिर और Nestler's reagent. हाँ Nestler reagent produces K2HgI4 in presence of KOH, gives NH2HgOHgI, which is iodides of minion base. Which is brown precipitate over there. Brown test. ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आई गो टू नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन का अगर हम देखें सबसे पहले कमर्शियल मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर ओवर देयर. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पहले नाइट्रोजन निकलता है फिर ऑक्सीजन निकलता है. लैब मेथड की बात करूं तो NH4Cl plus NaNO2. NH4Cl plus NaNO2 यहाँ पे भी नाइट्रोजन बनता है. यहाँ पे स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NO and HNO3 बनता है जो इम्प्योरिटीज होता है, जिसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं K2Cr2O7 and H2SO4. वापस रिपीट करता हूँ NH4Cl plus NaNO2. NH4Cl plus NaNO2 अगर हम ये रिएक्शन देखें या फिर NH4Cl plus KNO2 भी चलेगा, दोनों में नाइट्रोजन बनता है. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंप्योरिटीज होते हैं कौन कौन सी NO and HNO3, इसको निकालने के लिए क्या यूज करते हैं K2Cr2O7 and H2SO4. वैसे हम ब्लीचिंग पाउडर ले लो आप अमोनिया के साथ, ओके अमोनिया में ये भी रिएक्शन था, ब्लीचिंग पाउडर प्लस अमोनिया आपको नाइट्रोजन देगा. फिर बेरियम अजाइड सोडियम अजाइड, अगर आपको याद हो बेरियम अजाइड सोडियम अजाइड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये दोनों के दोनों रिएक्शंस किसके लिए यूज करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जो बाकी का प्रोडक्ट होता है वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में रिलीज हो जाता है यहाँ पे. इसके बाद इसके रिएक्शन देखे हमने, लिथियम प्लस नाइट्रोजन लिथियम नाइट्राइड देता है, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन मैग्नीशियम नाइट्राइड देगा आपको. वैसे N2 प्लस O2 रिएक्शन नहीं होता है बिकॉज N ट्रिपल बॉन्ड N इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, अगर आपको ये रिएक्शन करना है तो ये लाइटनिंग रिएक्शन बोलते हैं 2000 केल्विन पे होता है. ठीक है, हेबर्स प्रोसेस में भी ये रिएक्शन होगा. फिर आपको पता रहना चाहिए नाइट्रोलियम क्या होता है. नाइट्रोलियम इज अ फर्टिलाइजर. फॉर्मूला क्या होता है इसका CaCN2 प्लस C. अगेन आई रिपीट, नाइट्रोलियम क्या होता है CaCN2 प्लस C. ठीक है, फिर नाइट्रोजन के बारे में ये भी पता रहना चाहिए रेफ्रिजरेंट है, क्रायो सर्जरी में यूज करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करता है, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं इन क्या बोलते हैं वेल्डिंग एंड ऑल आल्सो ओवर देयर. ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ फॉस्फीन में. फॉस्फीन का अगर मैं बात करूँ, फॉस्फीन का प्रिपरेशन मेथड, द मेन प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉस्फीन ओवर देयर, हम कैल्शियम के सॉल्ट्स लेते हैं अलोंग विद एसिड्स और वाटर. कैल्शियम के सॉल्ट्स लेते हैं जैसे Ca3P2 plus H2SO4, Ca3P2 plus HCl, या विद वाटर ले लो. और लैब मेथड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, व्हाइट फास्फोरस प्लस NaOH फॉस्फीन देगा आपको. व्हाइट फास्फोरस प्लस NaOH आपको फॉस्फीन देगा. अब इसमें इंप्योरिटीज होती है, इंप्योरिटीज का अगर आपको ये बेसिकली प्योर हुआ तो नॉन इन्फ्लेमेबल है, लेकिन बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज ये इन्फ्लेमेबल हो जाते हैं. सर इंप्योरिटीज कौन कौन से यहाँ पे, दो इंप्योरिटीज है, एक है P4 दूसरा है P2H4. P4 और दूसरा है P2H4. अब इसको अगर हमें क्या होता है, ये बेसिकली ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, व्हाइट वोटिक रिंग्स बनाता है. तो अगर आपको पूछा व्हाइट वोटिक रिंग का रीजन क्या है तो आप P4O10 बोलोगे. व्हाइट वोटिक का रीजन क्या है, P4O10 बोलोगे. ठीक है, तो हमें इसको क्या कहते हैं प्यूरिफाई करना है तो हम इम्प्योर फॉस्फीन लेते हैं. ठीक है, इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं बेसिकली सबसे पहले HI के साथ, तो क्या बनेगा PH4I. ठीक है, PH4I को फिर हम रिएक्ट करते हैं बेस के साथ जैसे कि KOH. हमें जो अभी फॉस्फीन बनेगा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनेगा वो आपका प्योर रहता है बेसिकली. ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती है P4 P2H4. व्हाइट वोटिक रिंग का रीजन क्या है P4O10. ठीक है, अगर हमने फॉस्फीन को हीट किया तो जो मिलता है हमें वो होता है बेसिकली रेड एलोट्रोप ओवर देयर ऑफ फास्फोरस. फॉस्फीन को हीट किया तो डिसोसिएट होकर P4 एंड हाइड्रोजन देता है, जो एलोट्रोप बनता है वो होता है रेड ओवर देयर. फिर CuSO4 प्लस फॉस्फीन लो तो आपको Cu3P2 मिलेगा. वैसे अगर हम HgCl2 प्लस फॉस्फीन लो तो आपको Hg3P2 मिलेगा. ठीक है, फॉस्फीन को HBr के साथ रिएक्ट करो तो PH4Br मिलेगा. होम सिग्नल के बाद में बात करूं तो जो बॉक्स होता है उसके अंदर दो कैल्शियम के कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड. ठीक है, इसमें जब मॉइस्चर, इसमें जब पानी आ जाता है तो दो चीजें बनती है जिसकी वजह से रेड सिग्नल दिखता है, एक है एसिटिलीन दूसरा है फॉस्फीन गैस. बॉक्स के अंदर दो चीज कौन कौन सी, कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम फॉस्फाइड. सिग्नल किसकी वजह से दिखता है हमें, बेसिकली फॉस्फीन एंड एसिटिलीन. सिग्नल किसकी वजह से दिखता है हमें, फॉस्फीन एंड एसिटिलीन हो देयर. उसके बाद और क्या है इसके बारे में, फॉस्फीन के बारे में, फॉस्फीन के बारे में तो और कुछ नहीं है. एलोट्रोप्स ले लेते हैं फॉस्फोरस के. एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस में 3 एलोट्रोप्स है, एक है व्हाइट, एक है रेड, एक है ब्लैक. सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे ब्लैक होता है. व्हाइट फॉस्फोरस की बात में बात करूँ तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है फॉस्फोरस 6 फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड्स
एंगल जो है वो 60 डिग्री है ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन ओवर देयर। एंगल एक्चुअली होना चाहिए था 109 डिग्री 28 ओवर देयर, बट वो नहीं है बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन। फिर ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P4O10 बनाता है। सबके सब एलोट्रोप्स कन्वर्ट होते हैं टू क्या कहते हैं व्हाइट फास्फोरस व्हेन यू हीट इट ओवर देयर। फिर इसको स्टोर करने के लिए हम वाटर यूज करते हैं बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। बाहर रखा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, इसके बारे में और क्या पता रहना चाहिए कि ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड है, पॉइजनस नेचर होता है, केमिलुमिनेसेंस फास्फोरेसेंस दिखाता है। व्हाट इज केमिलुमिनेसेंस फास्फोरेसेंस? ग्लोइंग इन द डार्क ओवर देयर। और क्या पता रहना चाहिए यहाँ पे कि इसका रिएक्शन NaOH के साथ क्या देगा? व्हाइट फास्फोरस प्लस NaOH विल गिव यू फॉस्फीन अलोंग विद NaH2PO2। फिर वैसे रेड फास्फोरस कहाँ पे यूज करते हैं हम? रेड फास्फोरस बेसिकली यूज करते हैं मैच स्टिक्स में। उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है। फिर उसको अगर प्रिपेयर करना है तो यू यूज white phosphorus heated over there in an iron pot using iodine as a catalyst. बराबर ना? You heat it in using in an iron pot using iodine as a catalyst. Yes. उसके बाद पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, इसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है as compared to white phosphorus. Hence we use it in matchsticks over there. और क्या इसके बारे में? ब्लैक फास्फोरस के बारे में पता नहीं चाहिए कि अल्फा होता है, अल्फा होता है। हाँ, एक और चीज इसके बाद एक मेटालिक लस्टर होता है, मेटालिक लस्टर होता है बेसिकली इसके पास। फिर ब्लैक फास्फोरस के बारे में बताना चाहिए कि एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। एंगल जो रहता है वो 99 डिग्री होता है। अल्फा हम प्रिपेयर करते हैं रेड फास्फोरस से, बीटा हम प्रिपेयर करते हैं व्हाइट फास्फोरस से। व्हाइट फास्फोरस को हम येलो फास्फोरस भी बोलते हैं बिकॉज व्हेन यू कीप इट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट टर्न्स येलो इन कलर। ठीक है, और क्या है? बस यही है बेसिकली यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ग्राफाइट जैसा होता है ब्लैक फास्फोरस का, हेंस इट्स अ गुड कंडक्टर ओवर देयर। अगम, Yes, sir. allotropes of phosphorus बताएगा अगम? Yes, sir. So first we have this white phosphorus. It is the most unstable and reactive phosphorus, and all other forms convert to it on heating. In that, it shows chemiluminescence and phosphorescence, and also yellow rings are shown. So it is also known as yellow phosphorus. कोई जल्दी नहीं, आराम से अगम, आराम से। Yeah, it shows chemiluminescence and phosphorescence. So, and it is also known as yellow phosphorus. So P4 plus NaOH react करके देता है phosphine देता है plus Na2PO2. Then we have the red phosphorus, which is used for making matchsticks, and closed iodine pot using closed iron pot using iodine as a catalyst. You can obtain red phosphorus. Then iron gray luster of red phosphorus. Iron gray luster, very good. Yeah, and so I forgot one thing. White phosphorus is poisonous one. Would you buy? Huh? Go ahead. Sorry. Go ahead. फिर ये black phosphorus है, which is the most stable phosphorus. Two forms, alpha form and beta form, and alpha form is sublimable. NCERT से। आगे बोल, आगे बोल। और सर points दो ना। Black phosphorus। आप बोला ना सर, two forms, alpha form। Structure 90 degrees. 99 degrees. 99 degrees, sorry sir. NCERT। हाँ सर। अनुज। Yes. अनुज, कौन सा टॉपिक है अभी? अनुज ग्रुप 18 बताना पूरा। Group 18 चलो पूरा बोल दो। Okay, so we start with the physical properties. All right. First, let's just name. सब छोड़ दे चल। हाँ चलो. So helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So radon synthetically, radon is not मतलब वो radioactive decay product है of radium. And then organozone is the last element. Sorry. Byproduct क्या होगा? I didn't get you. What is the byproduct over here? अच्छा, byproduct of radium का decomposition. I don't remember. बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। अच्छा, तो organozone Helium it बनता है, is alpha particle बनता है। हाँ
Alpha particle. अल्फा Okay. पार्टिकल बनता है. Okay. और Okay. ऑर्गेनिजम की रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स. 3 neutrons, and it is a reaction between calcium and californium. Then the Yeah, perfect. half-life is 0.7 milliseconds. All right. Perfect. So that part is done. Then you have the chemical properties. Basically, they're inert gases. वो लोग का reactivity सबसे is पहले zero. क्लैथरेट्स. अच्छा हाँ, clathrates. Clathrates are basically cage-like compounds formed in अनुज water, I अनुज एक think. बार मैं पूरा बोलता हूँ फिर तू बोल. एक बार मुझे पूरा बोलना. So if you see over there, सबसे पहले हीलियम कहाँ पे मिलता है? पूरा का पूरा जो परसेंटेज होता है 1% होता है. इसमें आर्गन जो होता है 0.9% होता है. ठीक है, आर्गन का परसेंटेज 0.9 होता है. इसके बाद हीलियम और नियॉन 3 मिनरल से मिलते हैं. कौन कौन से हो? क्लेवाइट, पिचब्लेंड एंड मोनोजाइट. ठीक है, इसके बाद सब कुछ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते जाता है. जैसे रेडियस बढ़ेगा, आयोनेशन एनर्जी डिक्रीज होगा. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव है, काफी एब्नॉर्मल है वो है. फिर उसके बाद अगर हम देखें इसमें वाटर के साथ कौन से फोर्सेस बनाएंगे. वाटर के साथ फोर्सेस जो होते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, एज यू गो डाउन सरफेस एरिया बढ़ेगा, लर्निंग फोर्सेस बढ़ेंगे, इसके लिए ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बढ़ता है. हीलियम इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई होते हैं. फिर ईज ऑफ टेंडेंसी टू डिफ्यूज, हीलियम का सबसे ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ लेस मॉलिक्यूलर वेट होते हैं. अब कंपाउंड्स की बात करूं तो सबसे पहले कंपाउंड्स जो होते हैं क्लैथरेट्स होते हैं. क्लैथरेट्स आर केज लाइक कंपाउंड जो क्विनॉल के साथ बनाते हैं. इसमें बेसिकली फिजिकल ट्रैपिंग होता है. हीलियम नियॉन नहीं बना सकते क्योंकि दे पास थ्रू ओवर देयर द केज लाइक स्ट्रक्चर ओवर देयर. जबकि आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन बना सकते हैं बिकॉज दे गेट फिजिकली ट्रैप्ड ओवर देयर. देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग, देयर इज वैन डर वाल्स फोर्सेस ओवर देयर. इसके बाद अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं, ज़ेनॉन के रिएक्शंस, सबसे पहले जो रिएक्शन दिया था वो नील पार्टनर था. नील पार्टनर ने बेसिकली ये सोचा कि अगर ऑक्सीजन प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करता है तो एक इनर्ट गैस भी रिएक्ट कर सकता है जिसका आयोनेशन एंथैल्पी कंपेरेबल होगा. तो वो जो इनर्ट गैस जो कंपेरेबल था वो था ज़ेनॉन. ज़ेनॉन जब रिएक्ट करता है PtF6 के साथ तो बनाता है वो Xe plus PtF6 minus. This was the first noble gas compound, also called as Bartlett compound, which was red color over there. Again, I repeat, Xe plus PtF6 over there will give you Xe plus PtF6 minus. इसका कलर क्या था? बेसिकली आपका रेड कलर था. Xenon, hexafluoroplatinate, और प्लैटिनम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 5. इसके बाद 3 कंपाउंड्स बने, XeF2, XeF4, XeF6. सब में Xenon plus chlorine, Xenon plus chlorine, Xenon plus chlorine. अब इसमें है सब, पहले में Xenon in excess, दूसरे में 1:5 इन वॉल्यूम और लास्ट में 1:20 इन वॉल्यूम. टेम्परेचर और प्रेशर क्या है देखिए आपके 673, 873, 573. और जो प्रेशर है वो है 1 बार, 5 बार, 7 बार एंड 60 to 70 बार हो गए. ये आपका बेसिकली XeF2, XeF4 और XeF6 है. अब इसके हाइड्रोलिसिस रिएक्शन XeF2 विद वाटर ले लो तो Xe बनेगा प्लस HF बनेगा. वहां पे XeF2 विद H2 ले लो तो अब Xe बनेगा, HF बनेगा, O2 बनेगा. XeF4 विद वाटर ले लो तो Xe बनेगा, HF बनेगा, O2 बनेगा, साथ में XeO3 भी बनेगा. साथ में XeO3 भी बनेगा. XeF6 with 1 water will give you XeOF4. With 2 it will give you XeO2F2. With 3 it will give you XeO3. बराबर बोला मैंने. XeF2 with water will give you सबसे पहले Xe plus HF plus O2. XeF4 with water will give you Xe plus HF plus O2 plus XeO3. XeF6 with 1 water molecule will give you XeOF4. With 2 water molecule will give you XeO2F2, and with 3 water molecules it will give you XeO3. फिर उसका रिएक्शन है PF5 के साथ. PF5 के साथ XeF plus PF6 minus बनेगा. फिर SDF5 के साथ भी वैसे ही XeF plus SDF6 minus बनेगा. फिर अगर हमने सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्लोराइड से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? लिथियम, उसके Li plus क्या बोलते हैं, Na plus, K plus, Rb plus, Cs plus along with XeF7 minus. फिर आपको XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4 ये सब का हाइब्रिडेशन ये सब पता रहना चाहिए कैसे निकालते. और क्या है ऑर्गेनिज्म के बारे में. ऑर्गेनिज्म के बारे में पता रहना चाहिए. उसका हाफ लाइफ जो है वो 0.7 मिली सेकेंड है. यूजेस में पता रहना चाहिए. हीलियम के यूजेस में NMR स्पेक्ट्रोमीटर बिकॉज इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, बलून्स में जाता है. फिर ब्रीदिंग अपैरेटस में ट्राइमिक्स मैंने बताया था आपको. फिर नियॉन के बारे में क्या बोलते हैं, बीकन लाइट, रेड कलर बनता है वहां पे. फिर क्रिप्टन 85 के बारे में पता रहना चाहिए. यूज्ड फॉर क्या कहते हैं वो शीट्स में यूज करते हैं, थिकनेस ऑफ मेटल शीट्स डिटेक्ट करने के लिए. फिर रेडॉन के बारे में पता रहना चाहिए कैंसर ट्रीटमेंट में. ज़ेनॉन के बारे में पता रहना चाहिए यूज इन द डिटेक्शन ऑफ मेसॉन्स ओवर देयर. और क्या है, आर्गन माइनस कैप में यूज करते हैं. और कोई है फिर ज़ेनॉन यूज करते हैं हम फ्लैश बल्ब फोटोग्राफी में. ठीक
है, ये सब के सब आपके हो गए, क्या कहते हैं, यूजेस ओवर देयर ऑफ ग्रुप 18. अनुज, चलो तू बोल पूरा. Okay, पहले we'll go with the occurrence. All right. So the noble gases by percentage are 1% in the atmosphere, out of which 0.9% is argon. Then they are also found in three minerals: pitchblende, clavite, and monazite. But the Helium and commercial neon only helium and okay, neon, not all of them. okay, helium and neon. But the And the commercial source of commercial source helium, of helium is natural gas. gas. Yeah, natural gas. Then all of their electron gain enthalpies are highly positive because they have a complete octet. They're inert. Then you have helium, which has the lowest what can I say, the lowest melting point among boiling point among all the elements, which is 4.2 Kelvin, and it also has a property of diffusing to glass and rubber. Okay, then what's next? Which property is next? Ability to diffuse, ease of liquefaction. Okay, ease of liquefaction, that's what I covered right now. Helium Yes. is the least ease of liquefaction. Then you have clathrates, which are Clathrates. cage-like compounds formed with quinol. Now, neon and helium would actually not form it because they are too small. Argon, krypton, xenon get trapped in the cage-like compound. Then you have their chemical properties. Chemical properties, Neil Bartlett in March 1962 observed that the ionization enthalpy of xenon was similar to molecular oxygen. He compared the two. He compared O2 PTF6 and he created the compound Xe plus PTF6 minus. All right. So the most well-known, that is the most well-known inert gas compound. Among others, I think only krypton forms KrF2 and Yeah, radon forms RN, by some RNF2, technique which होता is है, radon technique. वो Radon radioisotopic. That tracer is technique something. tracer technique. That's not yet proven. Then you have hydrolysis, XeF2. No, first XeF2 formation. So that's 673 Kelvin, 1:1 ratio, and 6 bars, I think. Then you have XeF4, 1:5 ratio, 873 Kelvin and 7 bars. Then you have XeF6, 1:20 ratio, 573 Kelvin and 60 to 70 bars of pressure. Okay. Then you have you can also form XeF6 by XeOF4 plus O2F2. Now O2F2 is also Yes, yes. used to obtain Pu as PuF6 and spent nuclear fuel. Then you have, what can I say? What's next? Sorry. Okay, hydrolysis. XeF2 plus water would give Xe plus HF plus O2. XeF4 plus water gives Xe plus XeO3 plus HF plus O2. XeF6 can undergo partial or complete hydrolysis. Partial hydrolysis, jitna water hoga, utna oxygen will be there. So if there's one water molecule, it gives XeOF4. If there's two water molecules, it gives XeO2F2. And if there's three water molecules, it gives XeO3. So that's hydrolysis. And XeO3 with XeF6 with SiO2 would also give you XeOF4 plus SiF4. Yeah. Then hence you do not store it in glass bottles. Yeah. Then you have the uses. All right. Helium is used in NMR spectrometers. Then it is also used in MRI machines for creating superconducting magnets. And it is what can I say? Used in trimix mixture where helium is 11%, nitrogen is 56%, and oxygen is 32%, used by deep sea divers to prevent bends because of low solubility of helium. Then you have and also nitrogen. Nitrogen bends. Yeah. Then you have neon. Neon is used in beacon lights and bulbs. No, bulbs mein there's argon. It provides an inert atmosphere, and argon is also used in welding works. Then you have the use of krypton and radon, which are not well known, but still, I think argon, I think krypton or radon, one of them is used in determining the thickness of metals. And Krypton 85. Okay, krypton 85, and radon is used in radiotherapy. Yeah. Done. Yes. Yes. Also, radon half life longest of isotope 3.8 days. Okay. 3.8 days. ठीक है. Organism का preparation बोला Californium plus calcium हो गया. ठीक है.
Yeah, that's it, everyone. That covers group 15 and 18.